Good morning, everyone. Is my voice audible? Yes. Okay. Thank you. So we'll just wait for a couple of more minutes. There are more people who are expected, and then we will be starting. In just a couple of minutes, we'll be starting. So there are a lot of points that I would want to discuss in today's lecture. बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात करनी है. I'll be talking in English as well as in Hindi because I understand that many students from different parts of India would be joining in this session. Can you just confirm if my screen is visible, all of you? Okay, thank you. Okay, so now let us start. I have divided my lecture for today is divided into multiple portions. मैंने आज के लेक्चर को 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर रखा है, 2 या 3 पार्ट में. और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल बी टॉकिंग कि हाउ यू कैन यूज द 7 days दैट यू आर हैविंग, रफली 7 days आपके पास जो है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज द मोस्ट आउट ऑफ इट. दूसरी बात करेंगे कि what you have to do just before the examination, what things you should be observing just before the examination, and what are the things that you should remember in the examination. तो इस तरीके से 3 parts में I have divided my session. Is everyone comfortable with the language that I am using? English और हिंदी दोनों use कर रहे हैं. People from South India, are you guys comfortable with the language? Okay. Now, so सबसे पहले देखते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा विद मी. मेरे पास कुछ डेटा भी है बिकॉज आई वांट टू प्रूव अ पॉइंट ओवर हियर. मैं हवा में बात नहीं करने वाला. आई हैव experience of what I am saying and I have data to prove what I am saying. So let us start. And all of my students, all in all IITs and NITs, my students are already there, and I have seen the examination pattern and papers of past years. And whatever I'll be speaking over here, I'll be speaking considering that. तो वो experience को ध्यान में रख करके मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो a lot of students are from my batches. बहुत सारे students तो जिनको मैंने पढ़ाया है खुद वो है, कुछ लोग बाहर से भी हैं. तो when I'll be speaking, I'll be talking in both the terms. चाहे बाहर से आप आए हो, whether you are from outside, whether you are from my batches, मैं दोनों की बात करूंगा. Let us start with 7 days strategy. लगभग 7 दिन का समय है. You are having your examination on 16th of February. इस 7 दिन में किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि जहां से भी आप पढ़ रहे हो, from wherever you are studying, whether you are my student or whether you have joined some other classes, उससे फर्क नहीं पड़ता. जो भी नोट्स आपके पास हैं, आपका प्राइम एम होना चाहिए. योर प्राइम एम और योर प्राइम फोकस शुड बी टू लुक एट द नोट्स. ये जो 7 दिन 10 दिन का समय है आपके पास, उसमें आप नोट्स देख लीजिए, अपने PYQs देख लीजिए. आई एम श्योर कि यू वुड हैव सॉल्व्ड PYQs ऑफ लेट अस से 20-25 years. वो आप जरूर देख लीजिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका प्लस आई एम श्योर यू वुड हैव सॉल्व्ड सम PYQs. आपने पहले PYQs सॉल्व किए होंगे. उन PYQs में से जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट अवेयर अबाउट अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, आपने जब सॉल्व किया होगा तो वो फॉर्मूला लिखा होगा आपने, आपको पता नहीं होगा, आपने ढूंढा होगा कहीं से. दोज फॉर्मूलाज, दोज थिंग्स दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट, उनको नोट कर लीजिए कहीं पे, उनको एक बार देख लीजिए. नोट्स के ऊपर मेजर फोकस रखिए. कोशिश करिए कि ये जो 7 दिन का समय आपके पास है, वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग,
you should use that time to revise your material to at least 2 more times. 2 बार मिनिमम आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरा मटेरियल रिवाइज कर लें. स्पेसिफिकली अगर पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड बिलीव इन रिवाइजिंग योर मटेरियल, एटलीस्ट द हाई यील्डिंग टॉपिक्स. हाई यील्डिंग टॉपिक्स में अगर मैं कहूं तो बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो, दीज आर हाई यील्डिंग टॉपिक्स. इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें. Another important aspect that I feel is there is certain portion in GATE biotechnology syllabus that you would find that you are forgetting again and again. अगर जब मैं पढ़ाई करता था, when I used to study, I observed that these things, specifically these things, मैं भूल जाता था. I'm sure many of you would also have this problem कि you are not able to remember the bioprocess engineering formulas. जिन लोगों को मैंने खुद पढ़ाया है तो मैंने मार्क भी कराया है कि दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, या जिनके पास मेरी बुक है दैट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एट द एंड, तो वो प्रॉब्लम वहां पे सॉर्टेड है. लेकिन अगर आपने कहीं से भी और भी पढ़ा हुआ है तो यू शुड हैव ऑल द फॉर्मूलाज विद यू. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के फॉर्मूला सारे एक बार आपके पास रिवाइज हो जाने चाहिए एग्जाम तक. नेक्स्ट थिंग इज एंटीबायोटिक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. All of you would be knowing that antibiotic is one of the most important topics, whether it is coming from molecular biology, वहां पे भी antibiotics आता है, whether it is coming from immunology, वहां पर भी antibiotics आता है. तो जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, those of you who are studying, I have given you the list of antibiotics. Remember, याद है आप लोगों को? Molecular biology, immunology, कौन सा एंटीबायोटिक क्या काम करता है, what is the function, किसके ऊपर एक्ट करता है, ये निश्चित है आएगा इसमें से एक क्वेश्चन. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप इसको मतलब छोड़िएगा नहीं. जो भी जहां से भी आपने पढ़ा है, वेयर एवर यू आर स्टडिंग, नहीं कहीं भी नोट्स नहीं है, सर्च इट आउट इन इंटरनेट. आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यू विल गेट द होल लिस्ट. रिमेंबर दैट, उसको नहीं छोड़ना है. वेक्टर प्रॉपर्टीज. अब वेक्टर प्रॉपर्टीज में you might be knowing that there are so many different types of vectors, जैसे कि प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, इसके अलावा पक, PBr322, बैक, यैक, इस तरीके के there are so many different types of vectors. Now you should be knowing the insert size of all the vectors. At least you should have the idea, basic idea होना चाहिए, because time and again हर 2 साल पे आप चेक कर लीजिए पीछे का 25 साल का पेपर देखा है आप लोगों ने. मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किया है, जो लोग मुझसे पढ़े 25 years क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, एंड मैंने दिखाया है आपको. एवरी 2 years ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपको पास याद होना चाहिए ये चीज. वेक्टर प्रॉपर्टीज छोड़ना नहीं है, याद करके जाइए. नेक्स्ट, वाइटामिन्स. वाइटामिन्स के ऊपर भी क्वेश्चन एवरी नाउ एंड देन इज रिपीटेड. सबसे जैसे कि विटामिन फलाना, विटामिन बी और विटामिन B6, B9, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द को फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व, या इसकी कमी से डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज. इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है. तो विटामिन्स के ऊपर ये भी भूलने वाला टॉपिक है, तो आई वुड आस्क यू टू प्लीज रिमेंबर, प्लीज पे अ हीड ऑन विटामिन्स टॉपिक. इसके अलावा डिजीज एंड वेक्टर्स. नाउ बहुत सारी डिजीजेस हैं, ऑब्वियसली यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द डिजीजेस. ये तो बहुत मुश्किल काम है कि यू हैव अ ग्रिप ऑफ ऑल द डिजीजेस, बट एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट डिजीजेस यू शुड नो द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दोज डिजीजेस, as well as if any vector is involved for the transmission of that disease, that also you should be knowing. ये दोनों चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए. यहाँ पे वेक्टर का मतलब the organism that is responsible for the transmission of that disease. बहुत केसेस में इंसेक्ट्स है, तो वो पता होना चाहिए. जैसे कि मैंने अपने क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस कराए इसके ऊपर, जैसे लीशमानिया, डोनोवेनी, ट्राइपोनोसोमा, गैम्बियंस, याद है आप लोगों को? डू यू रिमेंबर? उसके ऊपर एक अच्छा खासा 1-2 क्वेश्चन हमने किए है क्लास में. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वहां से क्वेश्चन रिपीट में आया हुआ है. ठीक. इसके अलावा इफ यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, आई एम नॉट सेइंग फॉर दोज हु हैव नॉट स्टडीड, लेकिन जो लोगों ने मैथ्स अपना पढ़ा हुआ है, टारगेट कर रहे हैं, दोज हु आर टारगेटिंग मैथमेटिक्स, प्लीज जस्ट गो थ्रू द मैथ्स पोर्शन.
आप मैथ्स के जो भी जिस भी तरीके से आपने पढ़ा है, यू कैन गो थ्रू द फॉर्मूलाज, वट एवर पोर्शंस दैट यू हैव टारगेटेड, उसको आप देख लीजिए. तो इस तरीके से यू कैन रिवाइज द मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई बिलीव यू कैन फॉरगेट. जब तक आप इनको लास्ट के 7 days में, इफ यू आर नॉट चेकिंग दीज आउट इन द लास्ट 7 days, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ये भूल जाएगा. तो इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट ओनली गो थ्रू दीज टॉपिक्स, इसको तो आपको ठीक से देखना ही देखना चाहिए, बल्कि आपको मतलब जो भी मैं और भी बताऊंगा चीजें वो भी करनी है. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको तो देख लीजिए. अब कैसे कैसे आप स्टडी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इफ आई वर यू, आई वाज एट योर पोजीशन, व्हाट आई वुड हैव डन इज आई वुड हैव चोजन 2 topics फॉर ईच डे. मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूं, मैं ऐसे पढ़ता हूं कम से कम. आई टेक अ टफ टॉपिक प्लस आई टेक अ इजी टॉपिक. अब हर आदमी के लिए टफ और इजी की डेफिनेशन दूसरी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सिलेबस ईच सब्जेक्ट हैज, तो टफ टॉपिक मेरे लिए हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री. आई कैन क्लब इट विद a topic such as bioinformatics because the syllabus is not that much. Of course, syllabus might be that much, but you should be able to identify which portions I have to focus upon in the revision. आप पूरी चीज दोबारा नहीं देख सकते. तो biochemistry plus bioinformatics, I can group them up. Next, I can group bioprocess and APABT, plant animal biotechnology, and microbial biotechnology also you can add over here. इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ आई एम नॉट मेकिंग द ग्रुप्स बिकॉज इट इज वेरिएबल. आप टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है. तो यू कैन स्टडी लाइक दैट. अब डे 1, अब जैसे कि 9 तारीख है आज, तो 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th ऐसे सब बना लीजिए. जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक योर गोल कि डे 1 में मैं ये पढ़ के खत्म करूंगा. डे 2 आई विल बी स्टडिंग दिस, डे 3 दिस, डे 4 दिस, एंड दिस शुड बी कंटिन्यूअस साइकिल. इसके अलावा द टॉपिक्स दैट आई हैड शोन यू बिफोर दैट, इसको पढ़ लेना है. ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दिस शुड बी योर क्राइटेरिया ऑफ हाउ यू शुड बी स्टडिंग इन 7 days. नेक्स्ट आगे देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू बिफोर द एग्जामिनेशन. जस्ट एग्जामिनेशन से पहले क्या क्या चीजें करनी है. देखिए, I have seen many a times that gate centers जो हैं वो घरों से बहुत बहुत दूर होते हैं. Gate specifically the centers for gate are not very close to students location. तो आपको सेंटर एक बार जरूर जाकर के देख लीजिए. I have seen one of my students who was very intelligent face this kind of a problem. तो सेंटर पे उसी नाम का दूसरा सेंटर था. There was a different center with the same name and he got confused and went to that center. और उसको बहुत प्रॉब्लम हुई. he got late for the examination, however he qualified the examination, that is a different thing. but इस तरीके की सिचुएशन से बचने की कोशिश करिए. if you are not aware where the center is, just go to the center once and check out that yes, this is my center. दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, at many a times in the admit card that there is mentioned that these are the only things that you can bring. तो I've seen students, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि दे कैरी अननेसेसरी स्टफ. आपकी जेब में अगर कुछ भी और हुआ तो वो निकाल के बाहर कर देंगे. हाउएवर कॉस्टली इट इज, वो नहीं ले आने देंगे अंदर. इफ यू हैव समथिंग वेरी कॉस्टली, सपोज यू आर हैविंग अ वॉच दैट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली एंड दे आर नॉट अलाउइंग इट टू एंटर इनसाइड द हॉल, देन हाफ ऑफ योर माइंड वुड बी देयर कि मेरी घड़ी बाहर रखी हुई है और वो कहीं खो ना जाए. इस तरीके की किसी सिचुएशन से बचिए. घड़ी भी आप ना ही ले जाइए, क्योंकि वहां पे आपको कंप्यूटर पे दिखता रहेगा कि कितना टाइम जा रहा है. यू कैन कीप सम अमाउंट ऑफ मनी विद यू. मोबाइल मत ले जाइएगा. इफ यू आर हैविंग समवन अकम्पनिंग यू, अगर कोई आपके साथ जा रहा है तो ठीक है, आप उसको मोबाइल दे दीजिए. अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग मोबाइल, देन दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम, because some centers have the locker system, some centers would deposit mobiles and something like that, but majority of the centers will not do it. तो why to take risk? आपके साथ कोई जा रहा है तो उसको हैंड ओवर कर दीजिए. अदरवाइज डोंट टेक इट. अवॉइड करिए इस सब सिचुएशन में फंसना. बाकी आपकी इच्छा है. Many a times the photograph of the students on the admit card is not very clear, and
they get a mail. This happened in last year कि your photograph is not clear, you have to bring the photograph to the examination hall. इस तरीके का मेल पिछले साल आया था लोगों को. आई एम नॉट श्योर इफ एनीवन गॉट दिस मेल इन दिस ईयर ऑल्सो. अगर ऐसा मेल आया है तो आप उसका इंतजाम कर लीजिए. you can take a photograph with you if they are asking in the mail. Next चीज मैंने देखा है, many of the students they do not sleep before the examination and they try to complete whatever is left just before the examination. ऐसा करना बेहद बेवकूफी का काम है. It is not advisable to do that. आपको कोशिश करनी चाहिए कि you get a good night's sleep, at least 8 hours sleep before going into the examination. तो कम से कम मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको समझाना चाहता हूं कि do sleep early just before the examination. You would be anxious. बहुत एंजाइटी होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत पैनिक होता है. दैट इज नॉर्मल, बट ट्राई टू स्लीप अर्ली. जल्दी सो जाइए, कोशिश करिए जल्दी सो जाए. 8-10 बजे तक आप सो जाइए एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. डू वट एवर यू डू एंड देन गो टू द सेंटर. अच्छा से खा पी करके जाइए सो दैट यू डू नॉट फील ड्राउजी और डू नॉट फील प्रॉब्लमैटिक इन द एग्जामिनेशन सेंटर. तो ये चीजें आपको बिफोर द एग्जामिनेशन फॉलो करनी है. Now comes the most important part. एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करें, हाउ यू शुड फोकस, हाउ यू शुड अप्रोच, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर कैसे फोकस करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हटानी है, इसके बारे में सुनते हैं. अभी तक इज एवरीवन विद मी? अच्छा. At the examination center, do not involve in baseless discussions. Many students make this error. क्या होता है, 4 लोग खड़े होंगे, 4 people are standing at one corner and they would be discussing, यार मैंने ये पढ़ा है, तूने ये पढ़ा है. देखा है आप लोगों ने? यार मैंने तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी ही नहीं, यार मैं तो ये किया ही नहीं. अब अगर आपने ये सब बातें सुनी, if you are hearing that, if you are listening to this, तो यू विल स्टार्ट हैविंग सेल्फ डाउट. आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. जो आपको आता होगा, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो डेंट हो जाएगा. इफ समवन सेज कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तूने ये पढ़ा. अब आपने अगर नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू. प्लीज डू नॉट इन्वॉल्व इन बेसलेस डिस्कशंस. आप एक जगह पे खड़े हो जाइए, दूसरी जगह पे जाके डू नॉट हियर व्हाट पीपल आर सेइंग. ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अब तो कुछ हो नहीं सकता. पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो पता चल जाएगा एग्जाम में. तो डू नॉट इन्वॉल्व इन बेसलेस डिस्कशंस. दिस विल क्रिएट सेल्फ डाउट. डू नॉट, ये नहीं करिए. नेक्स्ट. बहुत बार ये प्रॉब्लम देखता हूं, चेक सिस्टम. सी, गेट का एग्जामिनेशन, इट इज नॉट क्वेश्चन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन. पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. Many a times I have seen that students are allotted, I mean, old computers, क्योंकि nobody checks all the computers. सभी computers को तो देखता नहीं, कोई चेक करता नहीं है. जब एग्जाम होता है तो suddenly a particular student who is unlucky gets a old computer. अब old computer के साथ क्या प्रॉब्लम है? सपोज उसकी स्क्रीन फ्लिकर हो रही है, सपोज उसका जो कनेक्शन है वो ढीला है, एंड वट एवर. सपोज ये माउस, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये माउस की है. माउस में स्क्रॉल बटन जब नहीं रहता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है. देखा, ऑब्जर्व किया है आपने? इफ यू आर नॉट हैविंग दैट स्क्रॉल बटन, देन बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन करने में. आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, बार बार ऊपर नीचे करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. तो बिफोर यू आर सिटिंग एंड एंटरिंग योर नेम ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, अपनी चीजें जब आप एंटर कर रहे हो, उससे पहले जस्ट चेक एवरीथिंग कि मेरा कंप्यूटर ठीक है, स्क्रीन तो नहीं फ्लिकर कर रही, कनेक्शन तो नहीं लूज है, माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बिकॉज इफ दे आर अलॉटिंग यू अ पर्टिकुलर सिस्टम, फिर उसके बाद वो बहुत परेशान करेंगे. दे विल नॉट बी चेंजिंग योर सिस्टम इफ यू आर कंप्लेनिंग. अगर बैठते ही आपने कुछ कहा कि यस ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट गुड, यू हैव टू चेंज इट, आप अड़ जाइए कि इस पे मैं नहीं बैठूंगा. 3 घंटे आपको, अगर आप फ्लिकिंग स्क्रीन देख रहे हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू, हाउ विल यू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन इफ यू आर नॉट एबल टू focus on the screen properly? Flicker कर रही है screen, if you are having problems in scrolling the mouse, how will you be able to focus on the paper? ये सब चीजें चेक कर लीजिए पहले ही बैठते ही. ये तो नहीं है तो चेंज करने को बोल दीजिए.
Ask them to change and they will change. Initially they will change, but after that time goes, they will not. दूसरी प्रॉब्लम, टेक डीप ब्रेथ. जब आप बैठेंगे सिस्टम के ऊपर, बहुत पैनिक होगा, बहुत एंशियसनेस होगी, बहुत आपको लगेगा कि ये दिल जो है छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा. बट टेक डीप ब्रेथ. जब ऑक्सीजन सर्कुलेशन में जाएगा तो यू विल जस्ट फील नॉर्मल. तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए एंड देन यू कैन स्टार्ट. मेरे हिसाब से इफ आई वर यू, आई वुड हैव स्टार्टेड विद बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन. कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ. व्हाई? Because did not have the mathematics background during my 12th, or I have not studied mathematics, so I'm not very comfortable in maths. मैं कर सकता हूँ, I can do certain questions, but I'm not very comfortable and I'm not very confident. So I should start with that portion in which I have some confidence. तो मैं उस पर शुरू करूंगा. अब आप में से बहुत सारे लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड होगा, तो दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. बट जो लोग बायोलॉजी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, दे डू नॉट हैव गुड हैंड इन मैथ्स, दे कैन स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन. अब कई बार क्या होता है, पहले के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे. मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. बहुत बार ऐसा होता है. हो सकता है कई बार एंग्जाइटी की वजह से, एंड कई बार जेन्युइनली नहीं आ रहा है, यू हैव नॉट स्टडीड दैट पोर्शन. अब क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल लूज होप कि अब तो मैं गया, अब आई विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दिस. ऐसा नहीं करना है. देयर आर 65 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू गो थ्रू. और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इट्स नॉट दैट बिग अ डील. गेट का एग्जामिनेशन ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते. प्रॉब्लम क्वालिफाइंग की तो है ही नहीं. प्रॉब्लम किसकी है? जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, वांट आंसर. प्रॉब्लम किसकी है? हम किसके नहीं लड़ रहे? आर वी फाइटिंग फॉर क्वालिफाइंग? नो, वी आर नॉट फाइटिंग फॉर क्वालिफिकेशन. आई एम फाइटिंग फॉर द रैंक. क्वालिफाई करना इतना परेशानी तो है ही नहीं. मैं दिखाऊंगा अभी आपको किस किस लिए मैं बोल रहा हूँ. आई विल शो यू द डेटा. हमें क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं सोचना है. वी हैव टू थिंक अबाउट द रैंक. अभी क्या है, 3 क्वेश्चन नहीं आए, हम पैनिक हो गए और बाकी के जो 62 क्वेश्चंस है उसको देख ही नहीं पाए ठीक से, तो खराब हो गया. Do not panic. There are high chances, suppose you are not able to follow 3 questions, 4 questions, 5 questions, no need to panic. सब बाद में हो सकता है 10 questions आपके बन जाए, तो you will gain the momentum again. Do not think कि सब कुछ पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा. Again, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, do not get stuck. मतलब क्या है do not get stuck का क्या मतलब है? सपोज मेरा पहला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, सपोज देयर इज अ न्यूमेरिकल एंड नॉट एबल टू गेट टू द आंसर, और सपोज देयर इज एन एमसीक्यू एंड आई एम थिंकिंग अ लॉट एंड नॉट एबल टू गेट टू द आंसर. उसके में चलते मैं 5 मिनट अपने उसमें बर्बाद कर दिया. अब क्या होगा कि आई एम लूजिंग टाइम ऑन द अदर क्वेश्चंस. अभी आगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, दैट विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम. तो मुझे ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन को. दैट मीन्स ये नहीं सोचना है कि कैसे नहीं होगा. ये छोटी छोटी लड़ाई है. एक एक क्वेश्चन जो है वो छोटी छोटी लड़ाई है. स्मॉल 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 फाइट्स. भाई पूरा बैटल जीतना है, पूरा वॉर जीतना है. तो डू नॉट गिव टू मच टाइम टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. हर क्वेश्चन को उसके मेरिट के हिसाब से टाइम दीजिए. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, जस्ट मूव ऑन. डू नॉट पुट इट इनटू योर ईगो कि कैसे नहीं होगा. तो वही क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बाकी नहीं हो पाया तो भी आप फेल ही हो जाएंगे. ठीक है, तो जस्ट मूव ऑन. दूसरा क्वेश्चन पे आइए. हाँ, आपका एक काम कर सकते हैं कि सपोज यू थिंक यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यू कैन डू वन थिंग. आई विल बी शोइंग इट टू यू कि क्या आप कर सकते हैं. आई विल बी टेलिंग यू नाउ. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. कीप अ ट्रैक ऑन योर स्कोर. वो आप पूछेंगे कि स्कोर कैसे पता चल रहा है. फर्स्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू गिव द एग्जामिनेशंस, आई यूज टू सॉल्व इन वन गो. मैं ऐसे क्वेश्चंस कर देता था जो मुझे आते अच्छे से, दैट आई एम वेरी श्योर और वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि इसका आंसर तो यही है. आई न्यू कि ये है. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस दैट यू विल बी वेरी श्योर. तो पहले बार में व्हाट आई विल बी डूइंग इज जस्ट क्विकली मैं कर दूंगा जो भी मुझे अच्छे से आता है. अब जब मुझे पता चल गया कि फर्स्टली डू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर एबल टू सॉल्व विद फुल कॉन्फिडेंस, तो मुझे एक अंदाजा हो गया कि यस आई विल बी स्कोरिंग दिस मच. क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि मैं ये किया हूं. आई विल बी
आई हैव डन दिस मच और मेरा स्कोर लगभग लगभग इतना आना चाहिए, आई विल बी गेटिंग दिस मच आइडिया। और ये आइडिया आप अवेयरनेस अगर आपके पास है पेपर के लिए तो यू विल बी एबल टू गेट भाई कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के हैं। अगर नहीं याद रह रहा है जस्ट राइट इट डाउन कि ये क्वेश्चन मैंने किया 2 मार्क्स का, दो इतना 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 लिख दीजिए। कितना लगेगा? 10 मिनट लगेगा। बट इससे आपको अपना परफॉर्मेंस पता चल रहा है कि मैं ये कर लिया। जब आप कर भी रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग वन क्वेश्चन, यू आर एबल टू असर्टेन कि ये मैं कर लिया, ठीक है, जस्ट राइट डाउन 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क, इस तरीके से लिख लिया आप। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग एन आइडिया दैट व्हाट आई एम स्कोरिंग इन फर्स्ट गो। Then you will be able to identify that how much I have to push. मैं जबरदस्ती ना करूं। I want you to avoid negative marking because most of the students they will be able to do as much amount of questions that are required for getting into a good college, but when they push themselves to the boundaries then क्या होगा, they will start doing the negative और negative की वजह से they are pushed out of the race, वो बाहर कर दिए जाएंगे रेस से। तो you should not do that। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं। ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन फॉलो वट एवर प्रोसेस यू वांट टू, बट आई डू दिस। मुझे पता चल जाता है कि मैं कितना कर रहा हूं। कट ऑफ का लगभग आइडिया है ही, मैं भी आपको कट ऑफ भी दिखा दूंगा कि पिछले साल के कट ऑफ कितने। नेक्स्ट, यूज रिव्यू बटन वाइजली। एक बटन होता है उसमें जिसमें रिव्यू बटन होता है। अब review button is specifically for those questions that you think that you can answer, but because of the time constraint you are not giving it as much time as you are thinking you can। आप उस पर रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए, बट इसको बहुत ध्यान से समझ के यूज करना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर क्लिकिंग द रिव्यू बटन एंड इफ यू आर ऑल्सो क्लिकिंग एन आंसर, रिव्यू पे क्लिक किया और आंसर पे भी क्लिक कर दिया, व्हेन द टाइम विल बी फिनिश्ड इट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली एंड वो आंसर मार्क कर दिया जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्म्ड अबाउट इट बट यू टेक्ड इट, रिव्यू पे क्लिक किया है तो आपने वो मार्क कर दिया जाएगा। तो इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर जस्ट क्लिक द रिव्यू। इफ यू आर श्योर कि यही होगा बट यू जस्ट वांट टू लुक एट इट लेटर, तो आप रिव्यू के बाद आंसर क्लिक कर सकते हैं, बट रिमेंबर इट विल बी मार्क्ड एज योर आंसर। गलत होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू से ओवर हियर? यूज रिव्यू बटन वाइजली। ऐसे ही मत कर दिया और रिव्यू पे क्लिक किया है तो आंसर पे अगर मार्क किया होगा तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इससे बाद में क्या करना है? check out the calculator. Now, the scientific calculator that GATE exams use is slightly different from the calculator that you have in your hand. जो आपके पास हाथ में होता है थोड़ा सा अलग होता है। What I would suggest all of you is to find out some time and do a mock test on GATE website. आपको GATE website पे mock test मिल जाएगा। Just search on it and just do one mock test. एक देख लीजिए and वहां पे आपको you will be able to find out the calculator also, so that you can get an idea कि कैसे काम कर रहा है सब कुछ। You can just test your hand for 1 or 2 or 5 questions let us say, तो आपको उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा so that you एकदम से आप वो लगेगा आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे यूज करना है, टाइम ना बर्बाद हो वहां पे। ये कुछ बातें होंगी। नेक्स्ट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स। Avoid negative marking. Now this is why I initially only I said keep a track on what questions you are doing and what are the marks that you can achieve. जो लोग ये स्मार्टली करते हैं उनकी सिलेक्शन के चांसेस अच्छे होते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? दिस इज साइंटिफिक वे टू डू थिंग्स। आप फोकस करके अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइए कितने आ रहे हैं, सो आपकी नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगी। अब कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड योर क्वालिफाइंग मार्क्स। अभी मैं दिखाऊंगा कि व्हाट आर द क्वालिफाइंग मार्क्स एंड आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। When you are doing the questions in biotechnology section specifically, pay special attention to terms like incorrect. Which of the following is incorrect? हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि इट विल ऑटोमेटिकली थिंक विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। वो यही पढ़ लेगा। होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? व्हेन यू आर रीडिंग क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, इनकरेक्ट लिखा हुआ है बट ऑटोमेटिकली आवर माइंड विल फंक्शन इन दैट वे कि वो देख लेगा कि इनकरेक्ट क्या है। क्वेश्चंस लाइक दिस आर मैसिव प्रॉब्लम्स। आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो वेन एवर यू आर रीडिंग इनकरेक्ट क्वेश्चन आए तो जस्ट फोकस, इनकरेक्ट ध्यान देना है। कई बार लिखा रहता है विच ऑफ दिस हैपेंस ऑलवेज इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम।
Which of these never happens in a biological system? Those words like this are the problematic words. आपको पता है in biological system there are very few things that will always happen and there are very few things that will never happen. बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं और एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं. डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ऑलवेज और नेवर जैसे शब्द अगर आ रहे हैं तो पे अटेंशन टू दैट. इनकरेक्ट शब्द पे खास तौर पे अटेंशन रखिए. सभी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू शुड डू ऑल नैट एंड ऑल एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस. ये दोनों क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं. रिमेंबर, नेगेटिव मार्किंग इज इन द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. नैट क्वेश्चंस एंड एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. दैट मीन्स यू आर फ्री टू डू दोस. तो ये ना कर दीजिएगा कि छोड़ के आ गए. आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, नैट में कुछ भी नहीं आता है, -2 दिमाग में है, वही लिख के चले आइए. क्या पता ईश्वर को क्या मंजूर है. समझते ही नहीं समझते भाई. जब कुछ नहीं जा रहा है तो लेट अस डू इट. मुझे -2 अच्छा लगता है, मेरे नंबर आए थे, समझ लिए, -2 में लिख के आ गया, दिक्कत है. ठीक है कि नहीं है? डू नॉट लीव. नैट क्वेश्चन नहीं छोड़िए, एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं छोड़िए. बाकी एमसीक्यू पे आप सोच सकते हैं कि यस आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, वो सब आपके ऊपर. ये दोनों नहीं छोड़ने. एक बहुत खास बात, इफ टाइम परमिट्स चेक योर नेट. चेक करना भी जरूरी नहीं है. आप नेट जब कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्वेश्चंस, व्हेन यू आर डूइंग दोज, जस्ट टेक सम टाइम. अगर आप 1 मिनट में कोई क्वेश्चन करते हैं, जस्ट टेक 2 मिनट्स. थोड़ा सा ज्यादा समय ले लीजिए. डू इट नॉर्मली, ठीक से करिए. हड़बड़ा के करेंगे गलत हो जाएगा. कैलकुलेशन में कुछ, कहीं यूनिट में कुछ, तो यू कैन लूज मार्क्स ओवर देयर. तो जस्ट if you're taking 1 minute in normal time, just take 2 minutes and do it coolly and calm. मैक्सिमम टाइम्स में गेट के एग्जाम में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज देर आर ओनली 65 क्वेश्चंस एंड देर इज 3 hours टाइम. तो टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम इन जनरल. इन गेट एग्जामिनेशन टाइम की प्रॉब्लम होती है CSIR नेट में, where there are so many questions and there is not enough time. In questions are very lengthy. उसमें प्रॉब्लम होती है टाइम की. If you are doing it at a normal pace, gate examination would not pose a lot of problems with respect to time. तो नैट को थोड़ा सा अच्छे से करिए, थोड़ा टाइम लेके करिए, एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो थ्रू इट अगेन. नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोल चुका हूं, फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. कितने लोगों को याद है हम लोगों ने इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस किए ड्यूरिंग आवर रिवीजन सेक्शंस. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. प्लाज्मिड का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड, यू विल हैव टू ड्रॉ द इंसर्ट. अब इंसर्ट को कहां पे कट करना है प्लाज्मिड को, वेयर यू हैव टू कट, विद व्हाट एंजाइम यू हैव टू कट. बैम H1 डालना है, इको R1 डालना है, कहां से कट करना है, यू हैव टू इंसर्ट योर इंसर्ट. अब इंसर्ट को भी वेदर यू हैव टू इंसर्ट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये सब जब आप कर रहे हैं तो ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम. अगर आप उसी में थोड़ा छोटा लिख के बना दिए तो मैक्सिमम चांसेस आर कि गलत हो जाए. अगर हो सके तो आप 2 या 3 कलर के पेन लेके चले जाइए. कम से कम मेरे को पता है कि फॉर बॉयज दिस विल बी अ क्राइम. मेरे पास जेब में केवल काले रंग का पेन होता था, आज तक भी वही रहता है, लेकिन प्लीज ले जाइए. एक बार के लिए बात है, ज्यादा भारी नहीं होगा, आ जाएगा जेब में. तो ब्लैक, ब्लू और एक लाल रंग का कलम ले लीजिए, ताकि आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट साइट को मार्क कर सकें. इको R1 यहां कट कर रहा है, बैम H1 यहां कट कर रहा है. कट करके इंसर्ट को जब आप अटैच करेंगे तो हैविंग डिफरेंट कलर्ड पेन्स वुड मेक इट इजी टू एनालाइज. इट विल टेक लेस टाइम, और ये टाइम यू कैन मेक यूज इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. छोटी छोटी बातें हैं विच आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस, और तब कोई बताने वाला नहीं था. अब आज मैं बता रहा हूं, तो मेक यूज ऑफ दिस. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अलग अलग पेन से बना लीजिए, जल्दी हो जाएगा. इट विल सेव टाइम. GA के ऊपर जनरल एप्टीट्यूड, मैंने क्लास में जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं. आजकल तो नहीं, आई मीन 2-4-5 साल पहले, इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 5 years, यू विल ऑब्जर्व कि पैसेज वाले क्वेश्चन बहुत आते थे. हैव यू सीन देयर वाज अ
a passage that was written and उसके ऊपर there were some questions that were asked. अभी इधर बीच में आना बंद हो गया है, but पहले काफी आता था. I'm not sure if they will ask this time or not. अगर पैसेज वाला क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेहतर, कम टाइम में और बेहतर रिजल्ट्स के साथ. व्हेन यू आर गिवन अ पैसेज, देन उसके नीचे 2-3 क्वेश्चंस होंगे. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए. सपोज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ लिए एंड देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. अब your mind will function in this way that will try to find out the answers to that question. वरना क्या होगा कि you will read the passage once, पहली बार में तो पैसेज समझ में नहीं आएगा, फिर आप पैसेज पढ़ोगे एक बार दोबारा. अब तब तक आप क्वेश्चन भूल चुके होगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसमें आंसर ढूंढोगे. अगेन यू आर लूजिंग टाइम. व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चंस पढ़ लिए पहले एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द पैसेज. अब अपना दिमाग ऐसे काम करेगा कि इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. जहां मिला खट से ढूंढा, टिक किया, आगे बढ़ गए. तो इन दिस वे यू कैन सेव सम टाइम इफ यू आर डूइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. सेम थिंग कई बार क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स में इन विच अगर आप उसको सीधे करने की कोशिश करो, इफ यू आर डूइंग इट from up to down, if you're reading the question and trying to solve it from up to down, it will take a lot of time. इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, you can directly use the options that they have given into the question और कट से आप आंसर निकाल लेंगे. समझ में आई मेरी बात? If suppose 4 options दिए हुए, you can directly use the option, वहां पे क्वेश्चन में डालिए ऑप्शन, you might be able to reach to the answer in a much faster way. यहां पे सारा खेल तो टाइम का है. Because I can save time over here and I can put it in my bioprocess engineering problems. वहां पे टाइम लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो पैसेज क्वेश्चंस में रिवर्स डायरेक्शन यूज करिए. एंड देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, मैं बता भी चुका हूं क्लासेस में. आई हैव टोल्ड यू कि हाउ यू कैन यूज द रिवर्स डायरेक्शन. वो कर लीजिए. गेट बीटी में पेडिग्री क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड वेरी कॉमनली. However, it is asked in GATE Excel. GATE BT में आए हैं बट उतने ज्यादा नहीं आए. आपने देखा होगा, I've done the questions, 25 years के questions क्लास में हमने किए हुए हैं. Pedigree questions are not asked as commonly as some of the other questions. Excel में बहुत कॉमन पूछे जाते हैं. But anyways, अगर पेडिग्री पे क्वेश्चन आया है and you have attempted it, हवाबाजी में छोड़, मतलब केवल ऐसे ही चेक करके मत डाल दीजिएगा. You have to check it with the genotype. ठीक है, जस्ट चेक आउट कैपिटल ए दोनों पेरेंट्स में, कैपिटल ए स्मॉल ए, वॉट एवर इज रिटन, जस्ट क्रॉस इट एंड देन फाइंड आउट वेदर यू आर रीचिंग टू द करेक्ट ऑप्शन और नॉट. खासकर व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी. फैब्री डिजीज का एक क्वेश्चन आया था, अभी किसी ने जनरली पूछा भी था, शायद चिन्मय या प्रीति आपने पूछा था. आप लोग हैं क्लास में? किसी और ने पूछा था, नॉट एबल टू. चिन्मय ने पूछा था, एक और भी किसी ने पूछा था. फैब्री डिजीज करके एक क्वेश्चन आया हुआ है. विच अमंग द फॉलोइंग गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन हैविंग द, और सन हैविंग द फैब्री डिजीज. या प्रोबेबिलिटी आ जाती है. प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से यूज करना है, दैट यू शुड बी नोइंग, शोन इन द क्लास. सो इसको अच्छे से यूज करिए, गड़बड़ मत करिए. कितने परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज में बताइए, वट एवर दे आर आस्किंग. ये हो गया पेडिग्री क्वेश्चंस के ऊपर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इज वेरी हाईली स्कोरिंग. मैंने आपको अपने क्लासेस में भी, मैंने जब कर रहा था क्वेश्चंस तब भी सिखाया था. whenever the match the following question is coming, you would definitely be knowing at least 1 or 2 of those. अब अगर सोचिए, हमें 2 मैच द फॉलोइंग पता है, 2 नहीं भी पता, तब भी वी आर एट अ 50% चांस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट. तो हमको अगर तुक्का मारना ही है, इफ आई वांट टू टेक अ रिस्क, आई विल टेक अ रिस्क वेयर आई हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस, रादर देन मैं एक ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क ले लूं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. अगर सोचिए, इफ आई एम अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन of which I am not aware about anything, कुछ भी नहीं जानता, what are the chances of me getting successful? MCQ type question है, 25% only 25% chances है select होने के.
लेकिन अगर एमसीक्यू पे मुझे 2 पता है, आई नो 2 आंसर्स, तो आई फॉर श्योर हैव मोर देन 50% चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस पे अपना लक आजमाना चाहूंगा एज कंपेयर टू दोज क्वेश्चंस विच आई एम नॉट अवेयर अबाउट। ठीक है, एक बात और, मैंने अपने अभी तक की जब तक मैं पढ़ाया हूं, मैंने देखा है मोर स्टूडेंट्स आर not able to qualify the examination not because they have not studied, because of their over enthusiasm। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो नुकसान उठा देते हैं। गेट का एग्जाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई आईएएस का एग्जाम तो है नहीं, और ना यहाँ पे सीट्स निर्धारित है। ऐसा भी नहीं है कि 300 सीट्स है तो 300 ही लोग सेलेक्ट होंगे, नथिंग लाइक दैट। देयर आर नो सीट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज जस्ट अ कट ऑफ, उस कट ऑफ को जिसने क्रॉस कर लिया वो हीरो बन गया। तो यहाँ पे रिस्क लेना बहुत खराब है। मैं देखा है, मैं हमेशा हर बैच में ही बोलता हूं, 2 hours students can do those questions that can take them across the line, they will get selected। बट लास्ट का जो 1 घंटा होगा उसमें वो इतने क्वेश्चंस कर देंगे कि वो बाहर हो जाएंगे रेस से। समझ में आई मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू से ओवर हियर? 2 hours में आप इतना कर लोगे कि आप पार हो जाओगे, बट लास्ट का जो 1 घंटा होगा उसमें आप इतना कर दोगे कि आप लेस के बाहर हो जाओगे। वो नहीं करना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि क्या चीज है, कैसे आप, मैंने क्या एनालिसिस की है। ये देखिए, दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर? तो दिस इज द कट ऑफ मार्क्स ऑफ 10 years फॉर गेट एग्जामिनेशन। ये मुझे इंटरनेट से मिला, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कितना करेक्ट है, बट मोर और लेस इट इज करेक्ट। तो ये क्लेम मत करिएगा कि सर आपने तो 30 बताया था, 30.5 है कट ऑफ। ठीक है, ये सब मत करिए। जस्ट सेइंग कि यहां पे अगर आप देखें कि दिस इज द कट ऑफ मार्क्स फॉर 10 years। अब जरा इसमें ध्यान से दीजिए, I'm just talking about the general category, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। रिसेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 अगर आप देखें तो द कट ऑफ मार्क्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ओनली, घट तो नहीं रहा है। अब आईआईटी बॉम्बे ने इतना कमाल का पेपर बनाया था, याद है आप लोगों को? इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा पेपर बनाया था जिसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा पूछी गई थी और टफ पूछी गई थी। दैट इज वाई द कट ऑफ फ्रॉम दैट ईयर जस्ट केम डाउन, ड्रास्टिकली कम हो गया था। अदरवाइज आप देख सकते हैं जनरल ट्रेंड इज दैट द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग। लेकिन किसी भी समय मैंने कट ऑफ 40 के ऊपर जाते हुए नहीं देखा है। इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एनसीएल कैटेगरी तो और कम है कट ऑफ, एससी एसटी कैटेगरी का तो और भी ज्यादा कम है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, नो वेयर कहीं पर भी आप 40 से ऊपर कट ऑफ मार्क्स नहीं देख पा रहे हैं। इस साल कौन बना रहा है पेपर भाई? विच आईआईटी इज प्रिपेयरिंग द पेपर दिस ईयर? आईआईटी रुड़की। यहां पे देखिए आईआईटी रुड़की का कट ऑफ 20, ये 38.9 कट ऑफ दिखा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप आईआईएससी बैंगलोर का देखें तो दिस इज ऑल्सो 38.9। दैट मीन्स अगर हम एक एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स को जनरली देखें, इफ आई एम जस्ट चेकिंग आउट द स्टैटिस्टिक्स, द पेपर, क्या आप कह सकते हैं इसको देख करके मैं अपने क्लासेस में क्या बोला है बता सकते हैं? व्हाट आई हैव सेड इन माय क्लासेस ऑफ आईआईटी रुड़की पेपर, मैंने बोला है कि नहीं? 1000 बार बोला है द पेपर विल बी बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड, बोला है कि नहीं बोला है? दिस इज द प्रूफ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा था, तब भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा हूं। द पेपर इज बैलेंस्ड। इतना हाई कट ऑफ जा रहा है 38.9, इसका मतलब यह है कि जब ये पेपर बना था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उतना टफ नहीं पूछा गया था। बिकॉज जिस भी ईयर, इन एनी ईयर, इफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इज आस्क्ड इन हाई मार्क्स एंड इट इज टफ, कट ऑफ नीचे आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रूफ है आपका, आईआईटी बॉम्बे का 30 मार्क्स गया था, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हिला नहीं पाए थे लोग, बड़े बड़े धुरंधर नहीं हिला पा रहे थे। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। और अगर हम इसको कंपेयर करें यहां से,
आईआईएससी बैंगलोर का भी पेपर बहुत बैलेंस था, देखा था 2024 का पेपर है, मैंने बोला है क्लास में, सबको बोला है कि जस्ट चेक आउट द आईआईएससी बैंगलोर पेपर, पीछे देखा होगा आपने। मैंने ये भी बोला है कि द पेपर इज रफली रिजेंबलिंग आईआईएससी बैंगलोर पेपर, पिछले साल के पेपर जैसा ही है, बोला है कि नहीं बोला है? ये है आपके सामने प्रूफ। तो रफली सेम टाइप का पेपर है, बैलेंस्ड पेपर आना चाहिए। इफ यू आर जस्ट एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल ऑब्जर्व कि पेपर बैलेंस्ड होगा। इट विल नॉट बी प्रिसाइसली डोमिनेटिंग इन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और आरडीटी। आरडीटी के क्वेश्चंस आएंगे, रुड़की के में आईआईटी, जो आईआईटी रुड़की है वहां पे आरडीटी या टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बैलेंस्ड पेपर, आपको हर टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। बहुत टफ पेपर की उम्मीद ऐसा मैं नहीं करता, कम से कम इतना देख करके तो नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ भी ऐसा हो गया तो हो सकता है, बट वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द डेटा, वी कैन से इट विल नॉट बी वेरी टफ, इट विल बी अ मीडियम टाइप ऑफ पेपर, और जिसने मेहनत करी है वो निकाल देगा। अगर आपने हवाबाजी की है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो ये बात होगी। अब अगर हम यहां पे देखें तो आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो कट ऑफ किसके बीच में एक्सपेक्ट कर सकता है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? मतलब अगर मैं कहूं तो 35 से 40 मार्क्स के बीच में कट ऑफ होना चाहिए। अगर हम जनरल एक रफ एक आइडिया ले लें तो 35 टू 40 मार्क्स के बेसिस पे इतना कट ऑफ होना चाहिए, इफ यू आर एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकली दिस डेटा। अगेन इट कैन चेंज, पेपर कैसे बनेगा तो नहीं जानते, हो सकता है बहुत टफ बना दे, उसको पिछली बार गुस्सा आया हो कि इतना ज्यादा कट ऑफ निकाल दिया था, अब की बार तो देख लेंगे कैसे नहीं निकलेगा, इतना कट ऑफ कैसे आएगा। बहुत ही टाइट पेपर बना दिया तो नहीं कह सकते, बट रफली हम कह सकते हैं कि द कट ऑफ विल रफली बी अराउंड 35 टू 40। अब 40 नंबर का अगर हम पेपर किए, अब देखिए व्हेन यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इतना ही रहेगा या इससे कम हो जाएगा या इससे ज्यादा हो जाएगा। कम से कम मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जितनों को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप अच्छी पोजीशन में होंगे आइडेंटिफाई करने के वेदर द कट ऑफ विल बी अबव दिस और वेदर द कट ऑफ विल बी बिलो दिस। होंगे कि नहीं होंगे, भी मानते ही नहीं मानते? आप अच्छी पोजीशन में होंगे एनालाइज करने के। अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत टाइट है तो आप ये मानिए कि 30 से 35 जा रहा होगा। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं यार ये आईआईएससी बैंगलोर वाला ही पेपर हट के आ गया एकदम से, कंसिडर 35 टू 40 जाएगा। अगर आपको लग रहा है बाप रे बाप तो हिल ही नहीं रहा है, बायो प्रोसेस क्या ही पूछ लिया है, लगा आपको बायो प्रोसेस टफ लग रहा है, आप सोचिए कि 40 के ऊपर नहीं जाता है, नहीं जाएगा, इतने इससे ऊपर नहीं जाता कट ऑफ, मैक्सिमम जाएगा तो 40 के आसपास जाएगा, ठीक है? रफली हम कह सकते हैं कि बहुत आसान चला जाएगा तो 30 हो जाएगा, बहुत टफ बना देंगे अब बहुत आसान हो जाएगा तो 38 30 फॉर 38 39 40 चला जाएगा। इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट तो 30 आ जाएगा, इसी के बीच में रहेगा। अब जितना आप कट ऑफ से ऊपर जाएंगे, सपोज 40 नंबर कट ऑफ है तो आपके 45 47 48 50, जितना ऊपर आप जा रहे हो कट ऑफ से उतना आपका अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना हो गई। जितना आप कट ऑफ के नजदीक हैं, 40 41 41.5 40.5, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिचुएशन और ज्यादा खराब इसलिए होती है बिकॉज अप टिल आईआईटी की जो लास्ट लास्ट काउंसलिंग होगी, 8th 7th 8th राउंड काउंसलिंग तक भी आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोज आप इसी सोच में उठोगे कि पता नहीं यार क्या होगा, आज काउंसलिंग होने वाली है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर आईआईटी की काउंसलिंग खत्म होगी, एनआईटी की काउंसलिंग चालू होगी, फिर उसमें वो सोचोगे कि ये होगा कि नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, उस सब सिचुएशन से बचना है, हमको हमको अच्छा करना है, पहली राउंड काउंसलिंग में ही निकल जाना है। समझ आया कि नहीं आया सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हो? इस ये सिचुएशन बहुत खराब होती है यार, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर राउंड की काउंसलिंग आप देख रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर 40 नंबर आ रहा है तो हम 50 नंबर का एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हमको 50 नंबर लाने हैं। 50 नंबर ले आए तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको आईआईटी जाने से रोक लेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही आपको बात?
और अगर 60-65 नंबर आ गए आपके 60, पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था, आईआईटी दिल्ली में है, उसके 63 या 65 मार्क्स थे। जब उसका पेपर वो करके आया तो मैंने कह दिया था कि तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा, और मिल गया। आईआईटी दिल्ली में है इस समय 2 स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी 3 स्टूडेंट्स हैं बल्कि आईआईटी दिल्ली में पिछले साल के। ठीक है, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाएंगे, लेकिन ये नहीं करना है कि जबरदस्ती क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं आता है तब भी कर रहे हैं, तो फिर तो आप नीचे आ जाओगे। जितना आता है उतना अच्छे से करिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे पेपर आ ही नहीं रहा है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, फिर तो करना ही पड़ेगा। 10 नंबर लेकर के आ गए और कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो पता ही है कि नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू आर रीचिंग अ रेस्पेक्टेबल मार्क्स, तो फिर एक्स्ट्रा अपने आप को स्ट्रेच मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो नेगेटिव चला जाता है। अब मैं आपको कुछ और स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं। ये देखिए, एक एनालिसिस लेकर के चलते हैं कि हम कैसे 50 या 40 के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है गाइस? 100 नंबर का है। क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। टोटल मिला करके द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर 65 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में एमसीक्यू आता है, एमएसक्यू एंड नैट टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो +1 टाइप के क्वेश्चंस हैं, +2 टाइप के भी क्वेश्चंस। इफ यू आर गेटिंग इट करेक्ट तो आपको +1 मिल जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो -1/3 हो जाएगा। और वही चीज +2 वाले क्वेश्चंस भी -2/3 नेगेटिव दे देते हैं। अब अगर हम टोटल एनालिसिस करें टोटल मार्क्स का, 100 नंबर में से 15 नंबर जीए के हैं पक्के पक्के तौर पे। 85 मार्क्स आर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन। अब इस 85 में यू हैव जीए ऑल्सो, जो हर साल 12 से 13 नंबर का फ्लक्चुएट करता है। 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, बहुत रेयरली इसके ऊपर भी जा सकता है, बट रफली ऐसे है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 73 और ये 12 अगर लेकर के चलें और ये 15 लेकर के चलें तो मेरा 100 नंबर बैठ जा रहा है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? यहां तक समझ में आया सबको? इज एवरीवन गेटिंग दिस? तो ये 15 नंबर, ये 73 मार्क्स ये। हाँ जी प्राची। सर आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने भी बोला ना, बायोटेक का, वो वाली बात ठीक से समझ नहीं आई थी। ये 85 मार्क्स जो बीटी के लिखे हुए हैं इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी मार्क्स इंक्लूडेड है, ये बोल रहा हूँ। ओके सर, गॉट इट। तो 73 तो ये हो गए, इसके अलावा 12 या 13 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के होंगे। अब मैं कम से कम अपना जो मैंने पढ़ाया है, अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया, अपने बाकी लोगों ने जहां से पढ़ा है मुझे नहीं पता, जो 15 जीए के हैं, मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसमें से आप कम से कम कुछ नहीं तो 8-9 मार्क्स ला सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें हाफ मार्क्स वर्बल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश का होगा, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। कुछ मैथमेटिक्स का होगा, मैंने आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोबेबिलिटी वगैरह सारी चीजें करा रखी है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स फ्रॉम हियर। जीए से आप 8 से 10 नंबर खींच सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए, ऑब्वियसली होगा, आप कुछ छोड़ोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 15 में से मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स सोचे हैं कि चलो ठीक है मिल जाए। अब आए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ये तो मैं टारगेट किया ही नहीं, तो जो लोगों ने पढ़ा है वो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। अब 73 मार्क्स में से कितने नंबर लाने हैं एक रेस्पेक्टेबल अच्छे अच्छे मार्क्स पे पहुंचने पे? मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 40 नंबर भी कट ऑफ गया तो मैं 50 नंबर अगर ले आया तो मेरा आईआईटी में हो जाना चाहिए। अगर मैं 50 नंबर भी ले आ रहा हूं तो मेरा आईआईटी में हो जाना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं 50 मार्क्स यहां से ले आया, 55 मार्क्स यहां से ले आ रहा हूं, 73 में से मैंने मैथ छोड़ दिया, छुआ नहीं, मुझे नहीं आता मैथ, छोड़ दिया मैंने। मान लीजिए मैंने यहां से 50 मार्क्स भी ले आया, 73 में से 50 लाने को बोल रहा हूं, तो यहां से 10 नंबर हम ला सकते हैं, 60 नंबर मेरा हो जाएगा। 50, 55, जहां जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन स्कोर। इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स तब तो कहने ही क्या, अब यहां से भी स्कोर कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं आती। मैं कम से अगर मैं करता तो इसमें से मैं 6 नंबर कर लेता, आधे 50% मैं कर लेता इसमें से।
तो मैं इसमें से 6 नंबर ले लेता। दूसरी चीज, आपको भी मैंने अपनी क्लासेस में भी आई ऑलरेडी टोल्ड कि कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? मैथ्स के लिए भी बता चुका हूं कि ये टॉपिक आप देख लीजिए, इसमें से आएगा। अगर आपने देखा है 50% आप यहां से भी स्कोर कर लोगे। यहां से 10 नंबर मैं लेके चल रहा हूं, तो 10 और ये अगर आप 16 लेकर के चल रहे हैं तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। बेटा रैंक कहां पहुंच गए भी तो निकाल लो ना, पहले सिलेक्शन तो ले लो। रैंक की बात जब काउंसलिंग होगी तब बात करेंगे रैंक की। कितने लोगों ने पेपर भरा है वो तो पहले तो समझे। ये तो पता नहीं कितने लोगों ने पेपर भरा है, कितने लोग एग्जाम देंगे, कितने लोगों की मार्क्स कितने आएंगे, उससे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है रैंक। रैंक बहुत दूर है अभी, पहले क्वालिफाई किया जाए। ठीक है जी, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? अगर इस हिसाब से आप चल रहे हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगेन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो आपको आता है वो आप मत करो। जो आपको आता है प्लीज वो तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को एक्सटेंड मत करो। अगर आप ठीक ठाक रेस्पेक्टेबल टोटल तक हो, रेस्पेक्टेबल मार्क्स तक हो, डू नॉट ट्राई टू एक्सटेंड योर सेल्फ फॉर जस्ट द सेक ऑफ डूइंग मोर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन विल हैपन व्हेन यू आर डूइंग करेक्टली, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। मेरा एक स्टूडेंट जिसके बारे में आपको बता रहा था, मैंने उसका साथ में एक इंटरव्यू भी किया हुआ है। उसको मैथ्स नहीं आती थी, मेरे टाइप का था। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, एंड ही इज सिटिंग इन आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग मैथ्स नहीं जानते बट चाहते हैं किसी अच्छे आईआईटी में वो चले जाना, देन आप इजीली जा सकते हो। आपको बाकी टॉपिक्स के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी, इस तब आप अच्छे से जा सकते हो। तो डू नॉट थिंक, डू नॉट बी नर्वस कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, नहीं आता। अब जो आता है उसके ऊपर फोकस कर लेना। जो आप कर सकते हो आसानी से आप पहुंच सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट गुड इट मैथमेटिक्स। अगर अच्छा है तो कम से कम 6-7 नंबर यहां से खींचिए, 10 नंबर यहां से खींचिए, 10 नंबर यहां से खींचिए, और बाकी आप बीटी में फोकस करिए। इन दिस वे यू विल बी एबल टू ग्रैब गुड रैंक। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है। बहुत सारे, कितने लोग यहाँ पे थर्ड ईयर में? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन थर्ड ईयर? ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। दोज ऑफ यू हु आर इन थर्ड ईयर, ये आपके लिए समझ लीजिए कि गोल्डन चांस है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड नाइसली, देन दिस इज अ गोल्डन चांस। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग इन द फोर्थ ईयर तो वहां पे प्रोजेक्ट के पंगे होंगे बहुत सारे। यू विल बी इन टू द प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही होगी, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस द सेम टाइम। इसी टाइम पे कंपनीज आएंगी, इसी टाइम पे प्रोजेक्ट चल रहा होगा, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस मच ऑन योर स्टडीज। थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। yes, if you get selected this year you can use the same gate का scorecard for your selection after your fourth year. but मैं यही कहूंगा कि वट एवर रैंक यू आर गेटिंग इन द थर्ड ईयर, वट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग इन द थर्ड ईयर, ट्राई एंड इम्प्रूव इट इन द फोर्थ ईयर। उससे और बेहतर करने की कोशिश करिए ताकि आप और अच्छे रेस्पेक्टेबल कॉलेज में जा सके। एंड दिस विल बी अ बोनस ऑल्सो, यू विल बी एबल टू लर्न कि अच्छा ये ऐसे ऐसे पूछा जाता है। यू विल बी एबल टू एनालाइज द एग्जामिनेशन वेल। तो थर्ड ईयर तो है, अच्छा है, इसी में पूरी जान लगा दीजिए, यही निकाल दीजिए। फोर्थ ईयर में इसको इंप्रूव कर लीजिएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक, ये मैं बताना चाहता था। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको इससे काफी कुछ हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे अपना टाइम दे सकते हैं, कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें अवॉइड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तानिया कुमारी, मैंने गेट बीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब के ऊपर है, उसमें पूरा बता रखा है मैंने कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसको जाके देख लीजिए, पूरी आइडिया लग जाएगा वहां से। और किसी का कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चंस? सर इफ हमें जितना आता है उतना कर लिया बट हमें डाउट है कि हमें और करना चाहिए, देन हम कितने क्वेश्चंस तक? प्रीति, ये तो तभी पता चलेगा ना कि क्वेश्चन पेपर कैसे आया है। अगर पेपर बहुत टाइट आया है और जबरदस्ती आप पुश करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है पेपर बहुत आसान है, वो तो आप ही एनालाइज करोगे, मैं यहाँ से एनालाइज कैसे कर सकता हूँ? पेपर जब आप देखोगे अपनी आंख के सामने, तो आपको दिखाई देगा कि ये पेपर इजी है या टफ है। उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कट ऑफ कैसे जाएगा। अभी अभी तो मैंने बताया कैसे कैसे करना है उसको, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटा बेसिस जरूर पढ़ करके जाइए, अलाइनमेंट पढ़ करके जाइए, यूपीजीएमए ट्री के बारे में पढ़ करके जाइए, जो आपकी ब्लॉसम और पैम की मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ करके जाइए, खासकर तौर पे डेटा बेसिस जरूर पढ़ के जाइए। गरिमा सर, बिट्स पिलानी का कट ऑफ आईआईटीज के इक्वल जाता है? ऐसा नहीं है, बिट्स पिलानी प्राइवेट कॉलेज है, और मैं किसी भी स्टूडेंट से ये नहीं कहूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करिए। आपका पहला एम होना चाहिए, या आप सोचिए उसके बारे में, ट्राई करिए आईआईटी जाना। अगर नहीं हुआ तो फिर सोचा जाएगा। बिट्स का अलग से फॉर्म आता है, और मुझे नहीं पता उसका कट ऑफ कितना जाता है, मैं कभी सोचा नहीं उसके बारे में। हाँ, अगर लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हो तो वीआईटी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, उसका भी फॉर्म आएगा, उसमें जा सकते हैं। ठीक है गरिमा, समझ में आया आपका? आपको वो आईआईटी के इक्वल नहीं जाता। आईआईटी में जो लोग गेट देते हैं, वो साथ साथ में कई लोग बिट्स का फॉर्म भरते जरूर है, बट दैट इज अ सेकेंड ऑप्शन। तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाते हैं, जो लोग अच्छा स्कोर गेट के आता है। तान्या कुमारी पूछे सर, बीएससी स्टूडेंट्स गेट के कौन कौन से कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये डाउट है कि बीएससी स्टूडेंट्स एमटेक परस्यू नहीं कर सकते। ये डाउट सच में बहुत कॉमन डाउट है, लेकिन मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट आईआईटी जोधपुर में है, पिछले के पिछले साल में उसका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मुझे उन्होंने ये बात बताई कि उन्हीं के कॉलेज में बीएससी के स्टूडेंट्स को एमटेक में एडमिशन मिल गया है। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई थी कि ऐसा कैसे है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि बीएससी जो 4 इयर्स का बीएससी है, उसको बीटेक के इक्विवेलेंट कंसिडर करके, क्योंकि कई जगह पे ये मेंशन नहीं होता। जब फॉर्म आएगा, आप ये तब कब कब निर्धारित कर सकते हैं कि बीएससी के स्टूडेंट्स किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? जब फॉर्म निकलेगा। अभी जो आप एग्जाम दे दो, एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस, हाँ, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी तान्या, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जब फॉर्म आएगा आपका, जब खड़गपुर का फॉर्म आए, रुड़की का फॉर्म आए, जोधपुर का फॉर्म आए, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डोमेन्स की, मास्टर्स एमटेक की जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगी कि वो किस ईयर को या किस बीएससी को या बीटेक को मांग रहे हैं। उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें बीएससी नहीं लिखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। कोई और कुछ पूछ रहा है? सर, आई हैव बीन गिविंग मॉक टेस्ट एंड स्कोर्स आर वेरिंग फ्रॉम 40 to 55। हाउ डू आई इम्प्रूव दैट इन 7 days? ये तो बहुत आसान सवाल आपने किया अयान जी। आपको जब आप मॉक, आपने जब एग्जाम दिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि आप किस एरिया में वीक है। अब सपोज मैंने एग्जाम दिया, मुझे आरडीटी के एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू वर्क ऑन आरडीटी। अगर मुझे माइक्रोबायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आई विल हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया। तो ये तो साफ तौर पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, इसी के ऊपर मुझे काम करना है। तो उसके ऊपर अच्छे से काम करिए। आप अच्छा अभी से स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा 7 दिन में अगर आप और उन चीजों को, वीक पॉइंट्स को अपने पकड़ लेंगे, तो विल बी एबल टू स्कोर गुड अनडाउटेडली। समझे? और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। अगर आप में से कोई भी गैट बी के कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो गैट बी का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है 28 फरवरी से। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन गैट बी, खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी के हैं, एमएससी करना चाहते हैं, बीटेक के हैं, एमटेक करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए गैट बी का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन इट। 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कनेक्ट इट। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर इन व्हाट? किस चीज की थर्ड ईयर में? बीटेक में है, बीएससी में है? बीटेक बायोटेक नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं बीटेक के, वही एलिजिबल होते हैं गैट बी में।
गेट के साथ ये है कि आप थर्ड ईयर में दे सकते हैं. और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, then thank you so much. It was nice talking to all of you. All the best, and hopefully I would see all of you in IITs. Thank you, Chinmay. Thank you. Thank you.